Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. How are you all, children? I hope you all are watching the video on a regular basis. And I just expect means I know some of the students who are okay. So I know some of the students are there for me who are expecting for me to see these video. So I just hope that I am fulfilling their expectation and you are understanding so many things from this one, because the main motive of the video is to make you understand the concept, and if you are understanding the concept, it is something a good option for us, and a very good thing for us. Okay, so yes, children, we are reading the psychology, and we have started the chapter 2nd. Okay, first of all, I should write down the date. So we are studying the chapter 2nd. Chapter 2nd, which is the methods of inquiry in psychology. Methods of inquiry in psychology. Okay. So chapter name is also clear to you all, and the date. If we talk about this chapter, children, so in this chapter, method of inquiry in psychology, in this chapter, we have discussed so many things. We have discussed so many things. So many things means we discuss about the goals of psychological inquiry. Whenever we about to go for any kind of inquiry, and especially that one will be the psychological inquiry, so it is very important for us to set some of the important goals. कुछ गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है. वो गोल्स क्या हैं? What are that goals? Goals are description, prediction, explanation, control and application. These are the goals. Description, prediction, explanation, control and application. After understanding the goal, you understand about what are the steps in conducting the scientific research. Scientific research करने में कौन से steps होते हैं? So we get to know that first of all you have to conceptualize the problem, identification of the problem. After identifying the problem, you should collect the data. After collecting the data, you will draw conclusion, and then last is revising that conclusion, redrawing. ठीक है? ठीक है. So after studying about the steps in conducting the scientific research, I discussed with you the types of data. There are different kind of data.
Then we are discussing now the methods, the important methods in psychology, where in the last video I had discussed with you the observation method. Now today in this video I am going to discuss with you experiment method. Experiment method. तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मेथड है क्या? हियर द वर्ड इज एक्सपेरिमेंट, ये आपको पता होना चाहिए. एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मेथड में एक वर्ड है एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज समथिंग which was done practically, that is an experiment. Secondly, a method which is something known as a controlled observation. What it is known as? Controlled observation. ठीक है? Understood? एक्सपेरिमेंट यानी कंट्रोल ऑब्जर्वेशन. आप किस चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि आपने ऑब्जर्वेशन किया, बट कैसे किया? कंट्रोल करके किया. सेकेंडली, एक्सपेरिमेंट मेथड मीन्स विथ समथिंग यू डन ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली. ओवरऑल एक्सपेरिमेंट मेथड इज बेसिकली अ मेथड to establish the relationship between two variables. Experiment method is a method which tells the cause and effect relationship between two variables. So write it down. It is a method which discuss the cause and effect relationship between two variables. Cause and effect relationship between two variables. ये मेथड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? एक जो है वो कॉज है, एक जो है वो कॉज है और उसका हम लोग इफेक्ट देखते हैं. सो एक्सपेरिमेंट मेथड इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल. एक कॉज होता है और उसका इफेक्ट पड़ता है, यही हमारा एक्सपेरिमेंट. एक एंड टू वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले तो ये भी पता होना चाहिए आप सभी को. वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इज समथिंग विच डू नॉट चेंज. वेरिएबल विच समथिंग विच डू नॉट चेंज, नहीं विच चेंज, विच वेरिएट, दैट इज अ वेरिएबल. बट वेरिएट क्या होता है? दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, इट्स कैरेक्टरिस्टिक चेंज. फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर इज अ वेरिएबल, बट दिस मार्कर इज नॉट अ वेरिएबल. Its characteristic like its size, its shape, its color, that variate. वो वेरिएट करता है ना. मार्कर डिफरेंट कलर्स के आते हैं, मार्कर की साइज डिफरेंट कलर्स की होती हैं, शेप डिफरेंट कलर्स की होती हैं. तो मार्कर नहीं चेंज हो रहा है, मार्कर की साइज, मार्कर का शेप, मार्कर के कलर, ये चेंज हो रहा है. तो वेरिएबल क्या होता है? विच चेंज, विच वेरिएट. बट वो ऑब्जेक्ट नहीं वेरिएट करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएट करती हैं. समटाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से इन एन वाइवा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि क्या फॉर एग्जांपल फैन इज अ वेरिएबल. सो आपका आंसर इमीडिएटली होना चाहिए फैन इज नॉट अ वेरिएबल, बट फैन की कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल है, क्योंकि उसका कलर चेंज हो सकता है, उसके शेप चेंज हो सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती हैं. अंडरस्टूड? सो एक्सपेरिमेंट मेथड क्या है? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द टू वेरिएबल. ओके, वन वेरिएबल विल बी द कॉज and another variable will be the effect.
एक वेरिएबल कॉज होता है और एक वेरिएबल इफेक्ट होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा वेरिएबल कॉज है, कौन सा वेरिएबल इफेक्ट है, कौन सा वेरिएबल कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। आपने सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट मेथड इज अ मेथड विच डिस्कस द या डिस्क्राइब द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इसे रब कर दें। इफ यू ऑल हैव रिटन इट, चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये तो हमने आपको बता ही दिया। राइट नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट इज वेरिएबल। नाउ वेरिएबल आल्सो ऑफ टू टाइप, ये दो तरीके के होते हैं। वन इज आईवी एंड अनदर इज डीवी। आईवी और डीवी दो वेरिएबल होते हैं, आईवी और डीवी। आईवी का ऐसे एक और वेरिएबल होता है आरवी, जिसे ईवी भी कहते हैं। इनके फुल फॉर्म्स आपको मालूम होना चाहिए। दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल आपको पता होना चाहिए। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वेरिएबल, आईवी, डीवी, आरवी एंड ईवी। आईवी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी इज डिपेंडेंट वेरिएबल, and RV is relevant variable। और इन्हीं रिलेवेंट वेरिएबल को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, प्लीज ये सारे नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वेरिएबल तीन तरीके, आईवी, डीवी, आरवी और ईवी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, रिलेवेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आप सभी से डिस्कस करूं कि ये होते क्या हैं। सो आई विल रब द बोर्ड नाउ। सबसे पहला आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे एक्सपेरिमेंटर जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर और एक्सपेरिमेंटी, ये सारे वर्ड्स आपको एक्सपेरिमेंट मेथड से रिलेटेड है, ये आप पहले जान लो। एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटर, और जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटी या सब्जेक्ट। जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसे हम एक्सपेरिमेंटी कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट करता है उसे हम एक्सपेरिमेंटर कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। रविंद्र बोर्ड विद द होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन कर लीजिए ये टर्म्स, क्योंकि ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे क्या कहते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट जिस पे हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम एक्सपेरिमेंटी कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे एक्सपेरिमेंटर यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो मैनिपुलेट कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है। पर डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है विच कांट बी चेंज बाय द एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर उसे चेंज नहीं कर सकता, और वो वेरिएबल है जिसका इफेक्ट आपको दिखता है, आईवी का इफेक्ट डीवी पे दिखता है। सो आईवी कॉज होता है और डीवी इफेक्ट होता है। ठीक है,
क्योंकि आईवी का ही इफेक्ट हम लोग किस पे देखते हैं, डीवी पे देखते हैं। फाइन, चलिए सबसे पहले आप ये लिख लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इट इज द वेरिएबल which is manipulated by the experimenter. It is the variable which is manipulated by the experimenter. ये वो वेरिएबल होता है जिसे एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर सकता है। आईवी एक तरह से कॉज होता है। सेकेंड है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है, इट इज दैट वेरिएबल which cannot be manipulated. It is that variable which cannot be manipulated by the experimenter. ये वो वेरिएबल है जिसे एक्सपेरिमेंटर जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सो आईवी वो वेरिएबल है जिसे एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर सकता है, और डीवी वो वेरिएबल है जिसे एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो आईवी जो होता है वो कॉज होता है, और डीवी जो होता है वो इफेक्ट होता है। Sorry for this one. Please take a screenshot of this one, whatever the things I have written here. IV is the cause and DV is the effect. Okay? Is it done? Independent variable and dependent variable. If you all have written it, so I am going to rub the board. IV कॉज है और इसी का इफेक्ट हमें DV पे दिखता है, DV इफेक्ट है। तो आईवी वो वेरिएबल होता है जिसको एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये कॉज होता है, और डीवी वो वेरिएबल होता है जिसे एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। लेट्स स्टडी इट विद द एग्जांपल। The more the time the child devote to the study, the better will be the performance. फिर से, the more the time the child devote to the study, the better will be the performance. So IV क्या है? Time to the study. जितना ज़्यादा बच्चे समय देंगे पढ़ाई को, उतना ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस होगा। तो टाइम टू स्टडी इज द कॉज, और इफेक्ट क्या हो रहा है उनके परफॉर्मेंस पे। सो टाइम टू स्टडी इज द IV, टाइम टू स्टडी इज द IV and DV is the performance. अब इससे क्या है, इसे एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर सकता है। टाइम को घटाया, इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। टाइम को घटाना या बढ़ाना हम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना अच्छा आप टाइम देंगे, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे स्टडी को, उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। जितना कम स्टडी पे टाइम देंगे, उतना ही कम आपका परफॉर्मेंस होगा। सो टाइम टू स्टडी और परफॉर्मेंस हैज़ अ रिलेशनशिप।
ठीक है, अंडरस्टूड। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। सो यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी। आईवी और डीवी का रिलेशनशिप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक्सपेरिमेंट मेथड समझ में आ रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड, व्हाट द एक्सपेरिमेंट मेथड इज डूइंग। एक्सपेरिमेंट मेथड क्या कर रहा है ये समझ में आ रहा है। एक्सपेरिमेंट मेथड में हम एक का इफेक्ट दूसरे पे देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है टू वेरिएबल में, आईवी और डीवी। वेरिएबल क्या होता है ये भी मैंने बताया। एक वेरिएबल और था जो मैंने आपको बताया था, रिलेवेंट वेरिएबल, जिसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। एक्सट्रेनियस मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक्सट्रेनियस यानी समथिंग विच इज एक्सटर्नल, जो बाहर से आया हो। ठीक है, चलिए। सो आईवी और डीवी आपका क्लियर हो गया, वेरिएबल क्लियर हो गया, और एक्सपेरिमेंट मेथड होता क्या है ये क्लियर हो गया, दैट इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। नाउ व्हाट इज एक्सट्रेनियस और रिलेवेंट वेरिएबल। एक्सट्रेनियस और रिलेवेंट वेरिएबल। एक्सट्रेनियस और रिलेवेंट वेरिएबल क्या है? ये वो वेरिएबल हैं जो एक्सपेरिमेंट को बाहर से अफेक्ट करते हैं। बाहर से अफेक्ट करते हैं मतलब इनको हम कंट्रोल करते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड में। आपको पढ़ना होगा, देयर वर सम टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सट्रेनियस और रिलेवेंट वेरिएबल। इन्हें कंट्रोल किया जाता है। ये वो वेरिएबल होते हैं जो एक्सपेरिमेंट को आउटसाइड से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। एक्सट्रेनियस और रिलेवेंट वेरिएबल। देयर आर सो मेनी एक्सट्रेनियस और रिलेवेंट वेरिएबल, जैसे कि सिचुएशनल वेरिएबल होते हैं कुछ, इनके भी टाइप्स होते हैं। एक्सट्रेनियस और रिलेवेंट वेरिएबल के भी टाइप हैं, जैसे कि सिचुएशनल वेरिएबल, सीक्वेंशियल वेरिएबल, और एक होता है सिचुएशनल सीक्वेंशियल, और एक होता है ऑर्गेनिस्मिक। ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ये वेरिएबल होता है ऑर्गेनिस्मिक। ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड वेरिएबल है ऑर्गेनिस्मिक। ठीक है, सिचुएशनल वेरिएबल, सीक्वेंशियल और ऑर्गेनिस्मिक। फाइन, सिचुएशनल, सीक्वेंशियल और ऑर्गेनिस्मिक। ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। सी जब हम कोई स्टडी करते हैं, तो पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके, नाउ अब हम कोई भी जैसे वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आईवी का इफेक्ट हम डीवी पे देख रहे हैं, तो आईवी का इफेक्ट डीवी पे देख रहे हैं तो क्या होता है उसमें, डिस्ट्रैक्टर, सॉरी। सो आईवी का इफेक्ट डीवी पे देख रहे हैं, यानी कभी हमें ये देखना है कि हाउ मच द अमाउंट ऑफ स्टडी ऑफ टाइम, मतलब अगर बच्चा ज़्यादा स्टडी पे टाइम देगा उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। तो हमें सिर्फ स्टडी का इफेक्ट परफॉर्मेंस पे देखना है, पर कभी कभी हो सकता है कि परफॉर्मेंस डिक्रीज होना या परफॉर्मेंस के इंक्रीज होने में कुछ अदर फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन फैक्टर्स को हमें कंट्रोल करना है, फाइन। नाउ सिचुएशनल फैक्टर, तो वो फैक्टर जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं वो ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल का पार्ट होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल। ऑर्गेनिज्म जैसे ऑर्गेनिज्म का एज लेवल, उसकी इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का एज लेवल, उसकी इंटेलिजेंस लेवल,
ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल का पार्ट होती हैं या ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना होता है, ऐसा तो नहीं कि इन सारी चीज़ों का इफेक्ट पर्सन पे पड़ रहा हो, ठीक है। हमें तो ये देखना है ना कि बच्चे की स्टडी का इफेक्ट परफॉर्मेंस पे पड़े। पर कुछ ऐसे वेरिएबल भी होते हैं जो आउटसाइडर होते हैं और वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे पर्सन का एज, पर्सन का जेंडर, पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल, पर्सन की पर्सनालिटी। ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल वो सारे वेरिएबल होते हैं जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, यानी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, तो वो ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है। सिचुएशनल वेरिएबल वो होते हैं जैसे सिचुएशनल फैक्टर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है कि जो चाइल्ड जो है वो ऐसी जगह पे स्टडी कर रहा है जहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो दिस ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। बहुत हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो हो सकता है उसका भी इफेक्ट परफॉर्मेंस पे पड़े। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, हमें तो ये पढ़ना है ना कि हमें तो ये स्टडी करनी है कि स्टडी का इफेक्ट हमें परफॉर्मेंस पे देखना है, ना कि अदर फैक्टर्स का। तो अगर उनका इफेक्ट पड़ता है तो हम क्या करेंगे, उन्हें कंट्रोल करेंगे। हमारा काम क्या होगा, उन्हें कंट्रोल करना। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट मेथड में एक्सट्रेनियस और रिलेवेंट वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करके रखते हैं, ताकि हमें सिर्फ किसका इफेक्ट किस पे दिखे, आईवी का इफेक्ट डीवी पे दिखे, आईवी का इफेक्ट डीवी पे दिखे, ना कि रिलेवेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट डीवी पे दिखे। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। Okay children, so I am discussing with you the types of the RV, types of the relevant variable या types of the extraneous variable. So these are the types: situational, sequential और organismic. Organismic relevant variable are those variables which are related to the organism. Situational relevant variable are those variables which are related to the situation, okay, which are related to the environment, which are related to the situation, which are related to the environment. Situational variable जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये सारी चीज़ें जो पार्ट है वो सिचुएशनल है। सिक्वेंशियल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो सीक्वेंस से रिलेटेड होते हैं। इसमें जैसे आपका फटीग आएगा, टायर्डनेस आएगा। सीक्वेंस यानी लगातार कोई भी चीज़ कर देने की वजह से भी आपको थकान हो जाती है, तो ये भी एक रिलेवेंट वेरिएबल है जिसे हमें कंट्रोल करना होता है। फाइन, सिचुएशनल वेरिएबल, सिक्वेंशियल और ऑर्गेनिज्मिक। सो आई जस्ट होप चिल्ड्रन यहाँ तक आप सभी को मैं ये मान के चल सकती हूँ, आई कैन अज्यूम कि आपको एक्सपेरिमेंट मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आईवी क्या होती है, डीवी क्या होती है, आरवी क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आईवी, डीवी, आरवी और ये सारे वेरिएबल्स, ओके ओके। नाउ इन आरवीज को कंट्रोल करने के कुछ टेक्निक्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ टेक्निक्स भी हैं, उनके नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ। जैसे कि बैलेंसिंग टेक्निक है, ठीक है, रैंडमाइजेशन टेक्निक है, काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक है, बैलेंसिंग, रैंडमाइजेशन, काउंटर बैलेंसिंग, एलिमिनेशन, टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन, टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन, बैलेंसिंग, रैंडमाइजेशन, काउंटर बैलेंसिंग। ये सारे कुछ टेक्निक है जिनसे कि आप रिलेवेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे जिन चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो उनको कम्प्लीटली रिमूव कर दो। एलिमिनेशन मतलब रिमूव कर देना फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जिन चीज़ों को नहीं रिमूव कर सकते उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। काउंटर बैलेंसिंग भी एक टेक्निक है और रैंडमाइजेशन भी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके।
So I just hope you understand the thing. Still, if you have any doubt, you can ask me in the class. Thank you, children.